Hi guys. Okay, so we have Shatakshi joining us today from Agra. So let's see. She's a dietitian, if I remember correct. Let's see. Hi Jay. We're waiting for someone to join us today. How is your journey going, Jay? Let me send her an invite. Okay, I think she should. Hi Gaurav. We're waiting for Shatakshi from Agra to join us. Cool, perfect. Yeah, I think she's here. Yes, sir. Hi Shatakshi, how are you? I'm fine. I can't see your video yet. Let me see, it's coming. Is it coming? It's still loading. Why don't we start by knowing something about you, Shatakshi? Even last time I didn't get a chance to ask you. So why don't you just introduce yourself briefly? Well, my name is Satakshi Jaiswal, and I just completed my graduation from In BCom side. Yes, You just completed your graduation in BCom. BCom in BCom, and BCom, okay. I'm in running 22. You are 22 years old now. Yeah. Okay, and what's your interest in diet? Are you a dietitian? Have you done any course in dietitian or what's your interest? Like, do you run a center? I mean, what's your ID, health and fitness? Well, after completing my class 12, so everyone they were like, nahi Satakshi, you should have to go for health and something like that because you are uh, you are something like I have I mean to say that I have something notes. I'm making some notes regarding the health and something like that from class When 10 did to you start doing that? So when did you start taking interest in health and diet? after class 12th. After? Class 12th. After class 12. Okay, okay. So about about 3, 4 years ago. Yes, yes, yes. Good. Okay, yeah, please continue. And you start taking, what made you take interest in health and diet? Sir, actually, after when I'm coming to college, then every girls, like everyone should like to be beautiful and taking healthy diet and something like that because everyone was asking about me, Sakshi, what you're doing. So About looking basically, good and that time, feeling good. Yeah. what? About looking good and feeling good. Everyone was interested in looking good and feeling good. Basically, is about looks. Looks. It's about Basically, it's about looks. Yeah. And when you are young, it should be about looks. So there's nothing wrong with it. You know, when we are young and we want good looks, so there's nothing wrong with it. You can say good looks means only looks wise, or it can only also be fitness wise, that you want to have a good body or an attractive face. Why not? Because you want to have more friends, more contacts. So yeah, it's very natural. So it's about confidence and something like that Yes, to be famous confidence, and all. definitely. Yes. Definitely, yes. Even in an interview, you feel good. If you look good, you feel good. Yeah, yeah. Yeah, Shatakshi, we still can't see your video. Shall we cancel it? Wait, cancel. How do I do that? Remove, and then I'll try adding you again. Just give me 1 second. Did you get a request?
Yeah, it's loading again. It's not coming. I don't know why. Are you on a good connection? Is it 4G or Wi-Fi? 4G 4G Oh, okay. connection है. 4G connection. No problem. Okay, yeah, please continue. Yes, so you became interested when you saw that a lot of your friends were interested in being fit, being confident, and looking good. Yes, yes, yes. Basically, my interest started from this kind of things like to be famous, to be looks. Basically, it's all about looks. It's all about confidence. It's all Status. Yes. yeah. So my gradually my interest started in this because from starting I should follow some diet plans basically जो more actresses जो follow करती हैं तो basically मैंने पहले वो follow करना start किया then of क्या course होता उसके है उसमें? धीरे धीरे ज्यादा क्या होता है, कम क्या होता है? या जो एक्ट्रेसेस सुपर मॉडल्स फॉलो करते हैं उसमें ज्यादा क्या खाते हैं, कम क्या खाते हैं? हाँ एक्ट्रेसेस और सुपर मॉडल्स जो आपने रिसर्च किया उसमें आपने क्या देखा कि वो लोग क्या ज्यादा खाते हैं, क्या कम खाते हैं? बेसिकली वो लोग जो खाते हैं ना वो उनका सूप होता है ज्यादा जूसेस होते हैं वो लोग फ्रूट्स एंड इन सब चीजों में ज्यादा रहते हैं ऑन कंपेयरिंग सॉलिड डाइट्स. सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होता है. यस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स परफेक्ट. या ज्यादा हाई रहता है. फाइबर डाइट, ऑब्वियसली हाई फाइबर डाइट, और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें वैरायटी भी आ जाता है. यस 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 एंड वो लोग ऑयल ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? they are not taking any oil they are like some olive oil little bit oil they having हाँ. oil Yes. like yeah Actually, the best oil in the world is the best oil in the world is extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. So अगर आपको तेल खाना ही है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल खाइए, अगर खाना ही है तो. और उसको भी रॉ डालिए. तो अगर आप कुछ कुछ भी खा रहे हैं, जैसे फ्रूट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, या तो आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उसके साथ डिप करके खा लीजिए या ऐसा कुछ. सो yes या ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड, द हेल्दीएस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड. yes कुकिंग तो उसको भी नहीं करना चाहिए. किसी भी ऑयल को आप गर्म करते हो तो फिर वो मतलब इट बिकम्स सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट एंड ऑल दैट, वैसे ही रिफाइंड होता है. सो और वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ना, वो हैंड प्रेस्ड होता है. सो दैट इज कंसिडर, मतलब वो केमिकल से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो हैंड से प्रेस करते हैं. basically cold pressed oil ये Cold कहा pressed, you're जाता है absolutely right. Yes, yes, that is the correct name. You're absolutely right. Cold pressed extra virgin olive oil is the best oil in the world. yes यस, and प्लीज कंटिन्यू. ओके, सो आपने देखा कि एक्ट्रेसेस और सुपर मॉडल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं. yes देन. देन सर एक और क्वेश्चन था मेरा वो हम्म. टोमेटो से रिलेटेड है लाइक टोमेटो लोग खाते हैं तो बेसिक बहुत लोग ने बोला है कि टोमेटो का जो ऊपर पील होता है उसको पील ऑफ करके खाया जाए हम्म. तो ऐसा क्यों लाइक टोमेटोज को पील ऑफ करके क्यों खाया जाता है मैं देख लेता हूँ क्यों, पर मैं टमाटोज अवॉइड करता हूँ बिकॉज टमाटोज लाइक काजू आर वन ऑफ दोज असिडिक फूड्स में आता है, जो अल्कलाइन और असिडिक होते हैं ना. हम्म So tomatoes go in that acidic category. So that's why it's the same reason why I avoid oil roots also. Like गाजर होता है, आलू होता है. So because roots are stimulants, जैसे ginger होता है. So these things are considered stimulants. ये ginger से आपका heart rate, अगर आपका heart weak है तो heart rate regulate करने में वो help करता है वगैरह. So जो भी stimulants होते हैं उससे मेरे को मतलब मैं कैसे बताऊं सिंपल वर्ड्स में कि मेरे माइंड कंट्रोल में मुझे प्रॉब्लम होता है. तो अगर मेरे कोई नए गोल्स है कि मुझे भागना है, मुझे ट्रायथलॉन करना है, मैराथन करना है, या तो काम वाइज मैं कुछ सोचता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मुझे कोई नया प्रोजेक्ट करना है, मुझे कोई मूवी बनाना है, सो उसके लिए दिमाग शांत चाहिए. और सारे स्टिम्युलेंट्स से दिमाग थोड़ा ज्यादा भागता है. सो टमाटो हैज अ सिमिलर रीजन. द टमाटो इज असिडिक. मतलब जो हमारी एक सेशन में बात हुई थी 2-3 दिन पहले कि कोई फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो इतना एसिड प्रोड्यूस नहीं करते, तो इन फूड्स को हम अल्कलाइन फूड्स बोलते हैं. और कोई फूड ऐसे होते हैं कि वो फूड
को हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड ज्यादा बनाते हैं। तो उन फूड्स को हम असिडिक फूड्स बोलते हैं। तो आप ट्राई करके देखो, एक वीक आप टमाटर खाओ मत, एक महीना टमाटर मत खाओ, और देखो अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ये पूरा स्किन का प्रॉब्लम ही क्वेश्चन ही चला गया। आंसर सेकंड मोस्ट क्वेश्चन वो बेसिकली लोग बोलते हैं कि हमको काउ मिल्क बहुत बेनिफिशियल होता है, तो इसके बारे में हाँ, आप। मिल्क में तो डियर आई थिंक, एक सेकेंड ना, मेरे पास एक दूसरा फोन है, उसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो मैंने अभी कहा कि टमाटोज असिडिक और अल्कनाइल। ओके, हाँ परफेक्ट, देखा। सो citrus fruits like oranges have citric and ascorbic acids and taste sour, but they are actually alkaline generating once they have been digested and absorbed. So मतलब आप ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज भले ही वो उसके अंदर विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है, लेकिन उसको खाने के बाद, हजम करने के बाद उसका इफेक्ट जो होता है वो अल्कलाइन होता है, क्योंकि उसको भी हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो ये बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले ही बैक्टीरिया होते हैं। So our tomatoes, alkaline tomatoes or little round red friends are fantastic alkaline foods, and like avocado is one of the only alkaline fruits. So tomatoes contain lycopene which can help prevent against heart attacks. How lycopene is not well absorbed in the body and the tomatoes are कुक्ड। ओके, सो अगर आपको टमाटोज खाना है तो उसमें से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसका एक केमिकल है उसके अंदर, लाइकोपीन, LYCOPENE। और लाइकोपीन जो होता है वो भी इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। मैंने बताया ना, ये सब फूड्स जो है ना, ये थोड़े सुपर फूड्स है, मतलब इसको दवाई समझ के ही खाए तो ज्यादा अच्छा है। और वो अगर आपको लाइकोपीन चाहिए, उससे आपके हार्ट को फायदा होगा, तो फिर आपको टमाटोज को कुक करना पड़ेगा। अगर कुक हुआ है तो ही आपको लाइकोपीन मिलेगा, वरना अनकुक टमाटो से आपको लाइकोपीन नहीं मिलेगा। सो हर चीज का मतलब फायदा और नुकसान है। शायद वो स्किन में कुछ न्यूट्रिशन होगा, लेकिन वो आपको लाइकोपीन लेने से रोकेगा आपके सिस्टम को। अगर आप उसको कुक करेंगे या बॉईल करके पील करेंगे तो आपको वो जो उसका स्किन है उसका न्यूट्रिशन कम मिलेगा, लेकिन आपको लाइकोपीन ज्यादा मिलेगा। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। अल्टीमेटली आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो वो अच्छा ही है। अल्टीमेटली आप उसको जैसा नेचर फॉर्म में मिलता है वैसा लेके खाते हैं तो अच्छा ही है। सो उसको पील करके खाने के कुछ फायदे होंगे, लेकिन उसके कुछ आपको मतलब न्यूट्रिशन भी उसका मिस आउट हो जाएगा, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके ओके। इफ यू ईट इट इन रॉ फॉर्म देयर विल बी नथिंग रॉन्ग विथ इट। उसको प्रोसेस करोगे तो हर प्रोसेस का कोई फायदा है कोई नुकसान है। जैसे ऑलिव है, तो आप ऑलिव को कच्चा खाओ तो आपका लिवर ऑलिव ऑयल बना नहीं वाला है। तो भी अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो तो उससे थोड़ा पोल्यूशन यूज होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अपने आपके आगरा में या बड़ौदा में तो हमारे बनता है नहीं। सो वो या तो माथेरान से आएगा या स्पेन से आएगा या कहीं ना कहीं से आएगा। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो किसी भी तरह का प्रोसेस होगा, इवन आप टमाटर को बॉईल करेंगे तो उसमें आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, आपका टाइम जा रहा है। फ्यूल जो है उससे इकोनॉमी हर्ट होता है, विमेन का टाइम किचन में स्पेंड होता है। सो देर आर मेनी थिंग्स। My solution would be either A, avoid tomatoes altogether, और second, eat them raw and see अगर आपको कुछ नुकसान नहीं होता तो कुछ उससे कुछ नुकसान नहीं होता। ओके ओके। हाँ करेक्ट मीर, या ऑलिव भी तो ट्रांसपोर्ट है। मीर वेड वेरी गुड पॉइंट कि ऑलिव भी तो ट्रांसपोर्ट है, इसलिए मैं लोकल दिखाता हूँ। आज ही मैंने बात की मीर, थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। आज ही मैंने बात की फ्रूट वाले से, तो मैं जैसे जो गुआवा लेता हूँ तो अमरूद या जामफल बोलते हैं, तो वो भूसावल से उसने बोला कि आता है, जो कच्छ के पास कहीं पे है। फिर ड्रैगन फ्रूट है वो कच्छ से आता है। फिर केले जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं। सो आप जस्ट सोचो कि महाराष्ट्र मतलब एटलीस्ट 500 किलोमीटर हुआ यहाँ से। मतलब मैं अगर रोज 1 किलो या आधा किलो केले खाता हूं तो वो रोज उतना महाराष्ट्र से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। तो मैंने बोला कि यार लोकल कुछ नहीं आता, यहाँ आसपास में गांव है पादरा वगैरह, उधर से कुछ नहीं आता। तो उसने बोला कि अब इस सीजन में पादरा से सब्जियां आनी शुरू होगी। और मैंने बोला फ्रूट, तो फ्रूट बोलते सिर्फ एक चीकू है जो लोकली ग्रोन है, बाकी ज्यादातर फ्रूट है वो गुजरात के किसी और कॉर्नर से या तो गुजरात के बाहर महाराष्ट्र वगैरह से आया है। सो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके उतना हम लोकल खाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का जो बिजनेस का, इंडस्ट्री का जो पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि मतलब ट्रांसपोर्ट तो चीजें होने वाली है, हम हो सके उतना ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग
जितना कम करे, जैसे आप ऑलिव ऑयल लेंगे तो वो बॉटल में आएगा, बॉटल भी फैक्ट्री में बनता है। और कांच तो ऐसा बोलते हैं कि 10-20 हजार, मतलब प्लास्टिक तो कुछ हजार सालों में डिकम्पोज होता है, लेकिन कांच तो लाखों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। सो अगर आप कांच भी यूज कर रहे हैं तो वो कांच जब भी टूटा वो बॉटल या आपने फेंक दिया या वटेवर, तो उसको लाखों साल लगेंगे डिकम्पोज होने में। सो आप समझ सकते हैं, वो ग्लास की बनाने की फैक्ट्री होती है, वो पोल्यूशन होता है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट अल्टीमेटली आप कुछ भी प्रोसेस्ड खा रहे हैं तो वो अवॉइड करके ट्राई करो। अगर उससे आपका बॉडी हेल्दी है, आपकी स्किन हेल्दी लग रही है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, उसको प्रोसेस किए बिना ही खा लो ना। Hmm. है ना। एक और Sir, है, सॉरी, कृष्णा का एक क्वेश्चन है, सॉरी, हसरा, रजनी का एक क्वेश्चन है, कुणाल का, सॉरी, कुणाल का एक क्वेश्चन है कि फॉर प्रोटीन्स व्हाट कैन वी टेक। सो कुणाल, मैं तो अभी प्रोटीन के लिए जैसे जामफल काफी खा रहा हूँ, तो जामफल आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर अब विंटर आ जाएगा तो विंटर में आपको ग्रीन बीन्स, जिसको गवार बोलते हैं, फिर फ्रेंच बीन्स, फंसी, फिर अभी चौड़ी आने लगा है, चौड़ी को पता नहीं क्या बोलते हैं, लंबे और पतले होते हैं। सो अलग अलग तरह के बीन्स आने लगेंगे, और सारे बीन्स जो है वो प्रोटीन में रिच है। पालक इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पालक को बहुत अच्छे से धोना चाहिए, लेकिन पालक इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मौसम्बी के बारे में, असिडिक है अल्कलाइन, कृष्णा अभी हमने बात की ना कि एक्चुअली वो असिडिक है, लेकिन उसको खाने के बाद, वो डाइजेस्ट होने के बाद उसका अल्कलाइन इफेक्ट होता है, तो आप उसको अल्कलाइन में गिन सकते हो। यस मिहिर, यू आर राइट, स्प्राउट्स एंड बीन्स, अगेन आई डोंट स्प्राउट, क्योंकि एक तो स्प्राउट करने में अगेन यू नो उसको सोक करना, उसका कपड़ा गंदा होता है, उसको धोना, उसके लिए साबुन, साबुन फैक्ट्री में बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लस उसको स्प्राउट करने से वो सॉफ्ट हो जाता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि नेचर ने जिस फॉर्म में बनाया उसी फॉर्म में खाओ। तो दाल वगैरह मैं अवॉइड ही करता हूँ, हो सके उतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से काम हो जाता है, तो फिर स्प्राउट करने का वगैरह वो सब सेंस नहीं बनता। ये शताक्षी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, we can see you now. Hi. hello. Yeah, okay, yeah, please continue. I think she's tuned out again. Let me try to bring her. Mihir, I don't know what is the name of my diet. My diet is 70% vegetables and 30% fruits. I eat them directly. I wash them and I eat them. I don't cut them. I don't boil them. I don't juice them. I don't peel them. I don't process them. So basically, unprocessed fruits and vegetables. That's my diet. And drink wise, I only drink water. I don't drink any juice or anything, milk or anything. I only drink water. So no animal products. I'm trying to think of a name. I mean, I call it free dairyism because it's just a free diet, mainly made mostly of fruits, nuts, seeds, etc. Just a second. No, Mehir, I don't consume dairy products. There are so many problems, everything from like karma problems to economical problems to cancer problems, every kind of problem. So no dairy products. Vegan, maybe, maybe not, because vegans will have cooked food, like they will have roti, dal, sabji, and all that. But I don't process food and I don't eat घास. Like चावल होता है, गेहूं होता है, वो सब घास नहीं खाता. Basically, fruits and vegetables, really simple as that. And not cooked, not cut, not peeled, not juiced, not processed, not fried, not boiled, nothing. It's also to help women, because women spend a lot, even educated women are supposed to have some kitchen skills, so to speak. So that is just socially wrong, like what is the point? I mean, what gives us society a right to expect women to cook? We don't have that right to assume that they must cook. If they are women, they have to cook. Yeah, Mihir, every video is a video about the diet and lifestyle. And that's why, I walk so much. I've taken up this 40,000 kilometer walk challenge because I want to show that not only can you live, not only can you be free of your pain and disease and all that, but you can also have a very active lifestyle, personally, socially, intellectually, spiritually, physically, sports wise, every way, athletically, you can have a very full life.
I don't know why Shatakshi is unable to join. I think something to do with her internet. Thank you, Mihir. Yeah, I don't know if it is new. It's just a high fiber diet with a lot of variety. That's all. High fiber diet with a lot of variety. Variety meaning I eat seasonal things. So if you eat seasonal, you get variety also, and you are also helping the environment by reducing transport because in transport again they use diesel and all those things. Oh, I'm still with IMS. Yeah, yeah. Yes, Shatakshi, I understand. You can type your questions here, Shatakshi. No problem. You can type your questions here, Shatakshi. I think it's connecting again. Let's see. You can see if it, let it try connecting. In the meanwhile, you can also try typing the question if you can type at the same time. Okay, okay, done. I can hear you also. So if you want, you can just try talking. Okay, sure. So basically, one more question. Hmm. Basically, everyone asking that what percentage of acidic foods and alkaline foods we should have to take. Yeah. Huh. So it's like you said, 75% are alkaline and 25% is acidic. So you know, in acidic, what are the main sources which are really beneficial for us? Okay. First of all, I said 70% vegetables and 30% fruits. Okay. Yeah, 70% vegetables, 30% fruits. And secondly, if possible, 100% alkaline diet, zero acidic diet. Okay. Okay, I Yeah, understand. so when you say acidic, like I said, acidic diet means वो खाना खाने के बाद वो खाने को हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं. Hmm. सो उसमें आ गया जैसे मीट आ गया, आपका ऑयल आ गया, स्पेशली कुक्ड ऑयल जो गरम ऑयल होता है जो हम फ्राइंग में वगैरह यूज करते हैं, आप खाना बनाने में बघार करते हैं तो वघार में यूज होता है. सो इन सब चीजों में जो ऑयल गरम होता है तो वो उसको तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और मीट को तोड़ने के लिए जो नॉनवेज को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया चाहिए वो भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं. सो असिडिक फूड आर ऑल दीज फूड्स विच आर लाइक अल्कोहल. फिर यू गेट द आइडिया, मीट होता है, तेल होता है. सो जो भी ये आपने जो बताया ना जो सुपर मॉडल्स और एक्ट्रेसेस नहीं खाते, ऑल दोज फूड्स आर ऑल असिडिक फूड्स बेसिकली. Okay. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल अल्कलाइन. इवन आप ऑरेंज भी खा रहे हैं तो ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, लेकिन उसको खाने के बाद जो हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो बैक्टीरिया अल्टीमेटली अल्कलाइन ही प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो खाने में तो अल्कलाइन ही हो जाता है अल्टीमेटली. Okay, done. Sir, one more question. हम्म. Actually, you know, बहुत लोगों का पूछना ये है कि जैसे हम लोग सूप्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है ऑन कंपेयरिंग टू यू नो जस्ट लाइक दैट, लाइक वी आर टेकिंग फ्रूट एंड समवन इज लाइक हैविंग अ जूस. हम्म. सो इट्स बेसिकली अबाउट सैल्वेशन. तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या क्या. करेक्ट. हाँ, सैलिवेशन ना, आप अगर जूस पी रहे हो तो उसमें आपका सैलिवेशन ही नहीं हो रहा, जो थूक के साथ आप सिर्फ एक गूगल करना आप, इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिवेशन. लेट मी डू दैट राइट नाउ अगेन. सो सी देखते हैं. ओके, सो लेट मी सर्च फॉर, सॉरी, इफ वी डू दैट, importance of salivation. Saliva in digestion. Importance of saliva in digestion. The digestive function of saliva include moistening food and helping to create a food bolus, bolus, so it can be swallowed easily. Saliva contains the enzyme amylase. ये आप गूगल करना प्लीज. आपके पास पेन और पेपर है?
मैं Yes. इधर टाइप भी कर देता हूँ एक्चुअली। टाइप कर लो आप एमिलेज, AMYLASE, एमिलेज। सो एमिलेज जो है ना वो बेसिकली डाइजेशन को पेट में खाना पहुंचने के पहले ही शुरू कर देते हैं, मुंह के अंदर ही। Okay, okay. और एमिलेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ गूगल में एमिलेज टाइप करना तो आपको पता चलेगा, और वो सलाइवा में होता है। सो अल्टीमेटली आप जो भी जूस पी रहे हो तो आपका वो सब सलाइवा जो है वो मिक्स नहीं होता, और आपको उसमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आपको जैसे ऑरेंज में से जितना विटामिन सी मिलना चाहिए वो निकालने का आपके बॉडी को चांस नहीं मिलता। जबकि ऑरेंज है तो आप सिर्फ उसका छिलका निकाल के खा लो, उसके ऊपर जो फाइबर लगे होते हैं व्हाइट कलर के वो भी मत निकालो बिल्कुल। तो आप जितना फाइबर ज्यादा खाओगे तो आपका बॉडी नेचुरली उसमें से विटामिन सी ज्यादा निकालेगा, क्योंकि वो फाइबर से भी आपको सैलिवेशन ज्यादा होगा, आपके गट का लाइनिंग इंप्रूव होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपके स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा अच्छे से बैलेंस होंगे। सो ऑरेंज का भी वो फाइबर एंजॉय करने का वही रास्ता है कि अपन जूस नहीं बनाए उसका। Hmm. Okay, okay. Thank you. यस मिहिर, यू आर ऑल्सो राइट। Hmm. Hi Pinky, yeah, you can ask your questions. Pinky, you can type your questions here. Shatakshi, any other questions? No, sir. That's it. है ना, मैं तो पानी के सिवा कुछ नहीं पीता, आपको पता है। पानी के सिवा और कुछ पीने की जरूरत ही क्या? आपको क्यूकम्बर का वो स्मूदी बनाने के बदले क्यूकम्बर को तोड़ के चबा के ही खाओ ना, उसको कट भी मत करो। आप कट कर रहे हो तो आगे का जो इंसाइसर्स है उसका काम कम हो गया, क्योंकि वो नाइफ वो इंसाइसर्स का ही काम करते हैं छोटा पीसेस बनाने में। सो यू नो द बेस्ट थिंग इज दैट हो सके तो कुछ कट ही मत करो, पील मत करो, जूस मत करो, ऐसे ही खाओ। ऑफ कोर्स बनाना में पील करता हूँ, ऑरेंज पील करता हूँ, अनार होता है पोमोग्रेनेट्स वो मैं पील करता हूँ। सविता हैज अ क्वेश्चन, आई एम 60 years ओल्ड, रॉ फूड लेकर एक दिन में कितने किलोमीटर चलना चाहिए? आपको जितना मन करे, आपका मन शांत रहता है, आपको नींद अच्छी आती है, उतना आप चलो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो अगर चलना नहीं है तो। बट बेसिकली आपको अच्छे से भूख लगे, अच्छे से नींद आ जाए, उतना आपको वर्कआउट करना है। अगर आपका मतलब आपको माइंड ज्यादा परेशान कर रहा है, थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो देन द बेस्ट थिंग टू डू इज के यू वॉक मोर एंड एक्सरसाइज मोर। कृष्णा का क्वेश्चन है, एक सेकेंड। My question related to morning diet, as I have seen you doing lots of sweating exercises, so I want to know what are you eating and drinking diet before and after sweating workout. विजू शर्मा प्लस, आप कितना किलोमीटर वॉक करते हैं? विजू 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है अलग अलग। कृष्णा, आपका जो क्वेश्चन है एसओसी, आई टेल यू कि आज सुबह मैंने एक छोटा सा गुआवा खाया, क्या बोलते हैं, अमरूद, जामफल। सो एक छोटा गुआवा खाया और मैंने लगभग 15 किलोमीटर साइकिलिंग किया, 2-1 घंटे जैसे साइकिल किया। फिर मैंने एक करेला खाया, कच्चा ही खा लिया, धो के सीधा करेला खा लिया। एक करेला खाया और 3 बनानास खाए। सो एक करेला और 3 बनानास, वो बनानास ज्यादा हो गए इसलिए उसके 2-1 घंटे के बाद मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। बहुत अच्छा टॉयलेट हुआ लेकिन तुरंत हो गया, वो बनानास खाए थे इसलिए। अगर मैं 3 बनानास के साथ 2 करेले खा लेता तो मुझे फाइबर ज्यादा मिल जाता और मुझे टॉयलेट नहीं जाना पड़ता। बट एनीवे ये हो गया। और फिर मैंने अभी खाया एक बैंगन और एक ककड़ी खाई, मैंने कच्चा ही खा लिया। सो सुबह से देखा जाए तो मेरा ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर चलना हुआ है, 15 किलोमीटर जितना साइकिलिंग हुआ है। सो 2 घंटे चला हूँ, 2 घंटे साइकिल चलाई है। एक अमरूद खाया, एक ककड़ी खाई, एक करेला खाया, एक बैंगन खाया, और 3 केले खाए। सो हो गया। हाँ, और अभी मैं वापस खाऊंगा थोड़ा बहुत, अगर मन किया तो थोड़ा ड्राई फ्रूट खाऊंगा, बनाना खाऊंगा, एप्पल एक खाया, हाँ एक ग्रीन एप्पल भी खाया मैंने। सो रात को अभी मैं मतलब वेजिटेबल, अभी फ्रूट नहीं खाऊंगा क्योंकि फ्रूट से और ज्यादा भूख लगती है। सो अब अगर मन किया तो थोड़ा और वेजिटेबल खाऊंगा, एक आध बैंगन खाऊंगा, और क्या होगा, सीड्स खाऊंगा थोड़े बहुत मन किया तो। वो मेरा जो एक सीड का मिक्स है जो मैं काफी बार दिखाता हूँ, जिसके अंदर तिल है, व्हाइट और ब्लैक तिल है, सौंफ है, फिर मेलन सीड्स है। सो ऐसा एक सीड का मिक्स है, वो थोड़ा खाऊंगा और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खाऊंगा, तो हो गया ये मेरा डिनर। सो पूरा दिन अगर आप 4-5 घंटे भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी, तो भी आपको 2 किलो, मेरे ख्याल से 1 किलो, 2 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल से काम हो जाता है। वैरायटी खाना बहुत जरूरी है। मिहिर, हाँ मैं वीक का 150, लास्ट वीक में 150 किलोमीटर, 149 किलोमीटर चला था। सो हर वीक में 100-150 किलोमीटर चल लेता हूँ।
इफ एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख देता हूँ। Yeah, so please send me a message on WhatsApp and we can schedule a call like this. Shatakshi, do you have any other questions? यस सर सर लाइक कोई मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि रॉ चीजें नहीं खा पाते हैं, लाइक रॉ वेजीज नहीं खा पाते, फ्रूट्स इट्स ओके, फ्रूट्स तो खा लेते हैं, उसमें भी सिर्फ एक दो फ्रूट्स खा पाते हैं, ज्यादा नहीं खा पाते। तो अगर वेजीज में हम लोग आते हैं तो वेजीज रॉ नहीं खाई जा सकती है, तो उसके लिए कितना हमको कुक करना चाहिए ये बताइए आप, बिकॉज उसके लिए भी ना हम लोग स्टीम करके खाते हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल ही फ्राई कर देते हैं, तो कितना उसको स्टीम भी देना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहें उसमें। न्यूट्रिशन से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अपना अगर सैलिवेशन की बात कर रहे हैं तो सैलिवेशन मतलब आप जितना भी उसको बॉईल कर रहे हो तो आपका वो सॉफ्ट हो रहा है तो सैलिवेशन कम हो गया, चबाना कम हो गया। अब अगर आपके लिए सैलिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। बट मतलब क्यों नहीं खाया जाता शताक्षी? इसमें क्या होता है, नाउ वी आर यू नो एंटरिंग लिटिल बिट ऑफ फिलोसॉफिकल रेल्म काइंड ऑफ कि अगर लेट्स से कि आपसे नहीं खाया जाता, राइट? आपसे फॉर एग्जांपल करेला खाया जाएगा कच्चा? करेला नहीं खा पाए, नहीं राइट, खा ओके, पाएंगे। सो या ओके, सो लेट अस डू दिस डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ। सो एक ट्राई करते हैं अपन। सो लेट्स सी क्या होता है। लाइट चालू कर लेते हैं, हाँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ककड़ी, करेला, बैंगन, कोबिच वगैरह। ये बैंगन भी बहुत अच्छे हैं। एक करेला फिर से लेते हैं, राइट? सो एक करेला लेते हैं। सब थोड़े बड़े हैं, इतनी भूख अभी मुझे नहीं खाना, काफी हैवी हो जाता है, पर ट्राई करते हैं। सो ये करेला लिया। और किचन मतलब ऐसा होता है, सो मतलब ये स्टोव वोव जो होता है वो सब जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। सो आपने लिया और इसको फिर धोना शुरू किया। इसमें धोते ना तो वो काफी वो ग्रीन कलर वाले वो उसमें से गिरते रहते हैं, अच्छे से घिस के धोते हैं तो। कैन यू सी शताक्षी? यस यस सर। है ना? ओके। कृष्णा, इफ यू डोंट माइंड वी कैन टॉक सेपरेटली। तो आपको जो क्वेश्चन है ना उसमें हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर सकते हैं तो पता चलेगा, सिर्फ एक चीज से यूजुअली पता नहीं लगता है। सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। आई थिंक इट शुड बी इनफ, चलेगा। कई लोग तो वो सॉल्ट में सोक करके रखते हैं, सोडा में सोक करके रखते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, पर वो भी ट्राई कर सकते हैं। मोर और लेस तो साफ ही है ये। हाँ, but it's a nice Karela. It's firm and it's you know very dark green as you can see. So it's a good Karela really. So then you just, है ना, बहुत ही क्रिस्प होता है। और अम, दो प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम, जब आप करेले को काटते हो और आपके जबान के ऊपर पूरा जो वो करेला फैलता है तो उससे पहला फीलिंग होता है कि अब मैं मर जाऊंगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। और दूसरा स्टेज होता है आप उसको कैसे भी करके चबा लेते हो, तो फिर जब वो आपके निगलने की ट्राई करते हो, जब वो आपके थ्रोट को हिट करता है तो तब बहुत ही गंदा झटका लगता है। मतलब यू नो लाइफ में से इंटरेस्ट चला जाता है कि अब जी के मतलब ही कोई नहीं है। बट तो भी वो आप खाते रहते हो, चबाते रहते हो, क्योंकि पता है चबाने में मुंह खोलना है, मुंह बंद करना है, और कुछ है ही नहीं। तो आप चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, तो वो निगलने रहते हो और इसका इतना गंदा आफ्टर टेस्ट नहीं है। और फिर ऊपर से आप इतना खत्म करने के बाद दो चार रेजिन्स खा लो, किशमिश खा लो, एक आध बनाना खा लो, अगर कर रहा है तो आदत पड़ जाएगी, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एनीवे, सो let's do this that I'll try, matlab I'll stop talking and try to finish this karela as soon as I can, so you can see that actually it's just food यार। मतलब टेस्ट तो माइंड में होता है ना। अगर मैं शताक्षी से बात कर रहा हूं तो कौन है शताक्षी? इज शताक्षी द फेस, इज शताक्षी द माइंड, और इज शताक्षी द सोल? सो अगर आप खुद को एक स्पिरिट समझते हो, एक सोल समझते हो, तो आपको टेस्ट से कुछ लेना देना ही नहीं ना। इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सोल को तो टेस्ट नहीं हो सकता ना, टेस्ट तो टंग को होगा या तो माइंड को होगा। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यस यस। है ना? ओके, सो एनीवे। ओके।
मिहिर, आप भी जो बोल रहे हो टेस्ट बड लास्ट होता है, वो यार मतलब टेस्ट तो यार माइंड में है ना। यू थिंक अबाउट इट यार, आप सोचो तो सही, आप लोग सब पढ़े लिखे हो कि टेस्ट कहाँ पे है? टेस्ट मतलब सोल में कैसे हो सकता है? माइंड में ही तो होगा ना टेस्ट। एंड फूड इज फूड, फूड इज अबाउट न्यूट्रिशन, फूड इज अबाउट हेल्थ, फूड इज नॉट अ टॉय कि मतलब मजा आना चाहिए, मतलब टॉयज में मजा आना चाहिए, खाने में क्या लेना देना। यस कृष्णा, यू आर राइट, टंग इज अ स्मॉल ऑर्गन और टेस्ट कुछ मिनटों के लिए रहेगा। पूरा बॉडी जो है, मेरा बॉडी, मेरा वजन 75-80 किलो होगा, तो मेरा 80 किलो का बॉडी और मेरा टंग 80 ग्राम का होगा। सो 80 ग्राम के टंग को थोड़ी देर मजा है उसके लिए मैं पूरे बॉडी को सालों तक क्यों पनिश करूं? Yes, absolutely, sir. वी आर ग्रोन अप्स, वी हैव टू थिंक लाइक ग्रोन अप्स, इट्स नथिंग स्पेशल। जो बोलते हैं ना बहुत डिफिकल्ट है ये वो, आप मतलब बात को ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हो। बाकी इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर जस्ट एजुकेटेड इंटेलिजेंट यंग पीपल। सो नथिंग शुड बी अ बिग डील। आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप अपना माइंड कन्विंस कर सकते हैं, थियोरी मतलब आइडियली स्पीकिंग के सिंपल होना चाहिए। टेस्ट अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? है ना, हो जाता है खत्म। Hmm. There's someone asking, हम्म। like वर्कआउट से पहले हमको क्या लेना चाहिए? हम लोग अगर बहुत स्वेटिंग वाली वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले क्या लेना चाहिए? ड्रिंक में या फिर सॉलिड में, ऐसा कुछ? वो मैंने बताया ना उसमें कि आज मैंने इतना किया, तो आज सुबह मैंने एक छोटा सा गुआवा खाया, फिर उसके बाद अगर मैंने 2 घंटा साइकिलिंग किया। तो गुआवा में प्रोटीन बहुत होता है, आप गूगल करोगे प्रोटीन रिच फ्रूट तो उसमें नंबर 1 पे या 2 पे आवाकाडो और गुआवा है। ओके, अगर सर कोई अगर नहीं खाता है, सिर्फ अगर पानी पीता है एंड देन आफ्टर वो करता है, तो कोई हाँ, रिएक्शन होता है इसका? नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। क्या, अगर आपको अच्छे से रात को नींद आई है तो हम्म। आप सुबह आपके पास एक एनर्जी होगी। और प्लस अगर हम्म। आपने, जैसे मैं करता हूँ, मैं सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, तो पानी पी ले तो मेरा पेट साफ हो गया, तो एक तो एनर्जी और बॉडी हल्का हल्का फील हो रहा है। तो यस। आपको एक बार आदत हो जाती है तो वर्कआउट करने का मन करता ही है कि आप सीधा अपने आप चलने लगते हो, साइकिलिंग स्विमिंग करने लगते हो। मतलब वो रूटीन ही बन जाता है। तो मैंने सिर्फ एक वो गुआवा खा के फिर इतना सारा वर्कआउट कर लिया। सो नहीं होता यार, हम जो लोग सोचते हैं ना कि वो प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, ये वो सब सब मिथ्स है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। ओके। एनीवे, यू गेट द आइडिया कि मतलब डेफिनेटली पॉसिबल है। और कड़वा है ही, मतलब मैं अभी थोड़े टाइम से शुरू किया है तो मुझे भी कड़वा तो लग ही रहा है, पर आई एम श्योर हर दूसरी चीज की तरह ये भी कड़वा लगना कम हो जाएगा। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट विमेन, आपको पता है कि विमेन का कितना टाइम किचन में जाता है? आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, तो भी आपको पता है कि आपसे कुकिंग तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि भाई थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। यस, डेफिनेटली। है ना? आपको अच्छा लगता है कि आप सिर्फ औरत हो इसलिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुक करो? आपको अच्छा लगता है ये? Is it something you are proud of? कि you know that because I'm a woman I have to cook, so I'm proud of that. Any other question, Shadakshi? No, sir, nothing else. That's it. Hi, Rajat. Okay, then let's just continue this call. कृष्णा, फ्रूट्स वेज के केमिकल से आपको डर नहीं लगता? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, केमिकल्स जो है ना, अर्बन लाइफ इज अ केमिकल्स आर अ पार्ट ऑफ अर्बन लाइफ। आप बाहर सांस लेते हो उसमें ट्रक में डीजल होता है, फ्यूल में लेड होता है, वगैरह होता है। सो आप सांस ले रहे हो उसमें केमिकल्स है। आप पानी पीते हो उसमें ये फ्लोराइड वगैरह डालते हो उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो उसमें केमिकल्स है। सो केमिकल अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब आप जो सब्जी और फ्रूट का बोल रहे हैं उसका क्या है, बहुत सिंपल है। आप गूगल करोगे आपको पता चला जाएगा, अगर आप वॉश करते हैं सो 80 to 100% पेस्टिसाइड्स धुल जाता है। अब 80% धुल गया और बाकी का मेरा डाइट तो वैसे ही हेल्दी है, तो टेक केयर हो जाएगा।
जैसे पहले मैं क्या करता था, पहले मैं नल के पानी से धोता था, फिर पीने के पानी से धोता था, क्योंकि मुझे पता है हमारे बिल्डिंग की टंकी जो है वो साल में एक आध बार साफ होती होगी, और टंकी के अंदर पूरा मॉस वगैरह ग्रीन कलर का है। अब मैं टंकी के पानी से धो के डायरेक्टली खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा डाइट इतना हेल्दी है, मुझे चाहिए कि मुझे छोटा मोटा ये सब जर्म्स वगैरह लगता रहे, और उससे मेरा बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट करता रहे। तो अब मैं जानबूझ के वो पीने के पानी से नहीं धोता, वो नल के पानी से ही धो लेता हूँ। सो नहीं, केमिकल्स और पेस्टिसाइड से कोई डर नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है मेरा डाइट इतना हेल्दी है कि वो उसको मैनेज कर लेगा। प्लस मैं शहर में रहता हूँ, उसका ये एक तरह का आप टैक्स समझो कि केमिकल्स तो आएगा ही। एटलीस्ट मैं प्रोसेस्ड फूड वाले तो केमिकल्स नहीं कर रहा कि जो मैं हजम ही नहीं कर पाऊंगा। आप अगर मैगी खाते हैं, आप अगर खाना कुक करके भी खाते हैं, तो आप उसमें तेल डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं। मैं तेल नमक शक्कर तो कुछ नहीं खा रहा। सो एक एवरेज बंदे से, या आप लोग में से जो भी कुक खाना खाते हैं, शुगर सॉल्ट खाते हैं, उनसे तो थियोरेटिकली स्पीकिंग मैं हेल्दी होना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं जितना हेल्दी हूं, उससे ज्यादा हेल्दी होना पॉसिबल ही नहीं है, यही समझ लो। बाकी इतना पेस्टिसाइड्स तो आएगा ही, मतलब कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट नो, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, कृष्णा? I think, yeah, Krishna got the answer. Okay, Shatakshi, if you don't have any other questions, we can discontinue now. Okay, okay, sir. Thank है ना? you. आपको कुछ भी questions हो तो please feel free to ask. You're most welcome. Okay, है ना? Take care. okay, thank you. Thank you. Bye. Bye, guys. The entire episode will be available. So if you want, you can just go to my IGTV and watch the episode. And everybody else, I request you to send me a direct message on Instagram or WhatsApp. आप chat में ऊपर देखेंगे तो मेरा नंबर है. So please send me a message on WhatsApp, and I would love to talk to you about any questions you have. उससे मुझे भी सीखने मिलेगा. Thanks, Mihir, for all your questions. Thank you. Yeah, you too. Take care. And Krishna also, take care, buddy. Bye. See you soon.